सबसे ज़्यादा कुछ ना मैंने इस पे भी देखा गेम ऑफ थ्रोन्स में। Why the Lakers was right with Lakers? Because they lost to Dallas. वो Recording in progress. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और मैं था तीन था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दो थे। ये नॉट है तीसरा पेंटागन टोटल कितना देना है चक्कर टोटल कितना प्लेन चार एमाजी एक पेंसिल्वेनिया में क्रैश सर हमारा करंट अफेयर गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग सुनाई दे रहा है अच्छे से ओके पब्लिक वो वही है क्लास हाँ record guys record solo gaming solo gaming अच्छा the girl getting married to herself वो वाला केस नहीं not that much important पॉलिटिकल स्टंट है India's first 3D printed cornea is developed in Hyderabad. Cornea क्या होता है? आई का पार्ट Outermost layer of your eye is called cornea. Who developed this cornea? It is L.V. Prasad Eye Institute, Indian Institute of Technology, Hyderabad, and Center for Cellular and Molecular Biology. It is the collaboration of these three institutes that has developed cornea using 3D printing technology. And this developed cornea was, let's use a funny word called installed in a rabbit. Okay. Biologically, this developed cornea was transplanted into a rabbit. So tests are being run. So basically, the people who are blind because of cornea damage, scientists intend to develop a fully functional cornea so that they can have a eyesight.
ठीक है, लिख लो. Anybody with the difference between 3D printing and normal printing? 3D printing सुन के ऐसा नहीं होगा. Actually पूछते हैं what is 3D printing? सिलिकॉन स्ट्रैंड्स है, स्ट्रैंड्स ने प्रिंट किया है. 3D printing basically means you cut anything layer by layer to make a cornea. You use the material but you cut it in a fashion. So this is done to reduce the wastage. Okay, लिख लो. Sir, આપે લોકો replace કરવાનો is important છે. એના ઉપર પોલિટિક્સ વધારે થાય છે કે you think, let's imagine કઈ એક્ઝામ આપી તારે. હા, તો એમાંથી કયા ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ ફ્રેમ કરી શકે તું? Remission policy. Remission policy. That we have already covered 5 remission power under Article 72 of President. Okay, so yes, from that point of view, we can study that article because it was also utilized recently in the remission case of killers of Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi के जो the lady and the guys who were charged with murder, उनके लिए भी Article 72 was in use. पुराने lectures देखना, especially those who are appearing for CLAT. January से lectures देखना online. You guys will be in a better place because उसमें बहुत सारे important है और तब मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ. ठीक है, तो देख लेना. थ्री प्रिंटिंग घर पे जाके देखना. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी. It reduces your wastage and you can make anything with the help of 3D printing technology. Even a heart has been created using a 3D printing technology. Okay. 3D printer model आपको. 3D printer can be manufactured by you, can be manufactured by me. मेरे दोस्त ने बनाया था. ठीक है. Easily available in the market. Okay guys, everybody. Sir, action figure that twice. हाँ. Action figure twice. When was Ramsar Convention signed? 1971 second February. Very good. Very good. Very good. Very good. Questions? Okay. Very good, guys. And Ramsar is a city in. Iran. Very good. Make sure you study this topic in detail because we studied about 5, then और 10 किए हैं गवर्नमेंट ने, and then और 11 किए हैं. ठीक है. So total there are 75 now. आगे जाके देखेंगे. So वो आपको काफी डिटेल में प्रिपेयर करना पड़ेगा. Okay. Let's go ahead अभी. Okay. Indian Army and weapon system. Already questions have been asked about Rafale. So today we will be covering some important developments. All of these things needs to be seen with a larger initiative of the government, that is to promote indigenization of Indian armed force. Basically, government wants to reduce its imports from abroad and they want to promote manufacturing, research and development in defense related sectors in India only. To promote that, government has recently handed over Nippon mines. These are anti-personnel mines. ठीक है? In some certain areas where there is impossible to have human presence, आप वहाँ पे जाके इसको फिट कर सकते हो. ठीक है? So if anybody crosses it, वो फट जाएगा. ठीक है? FINSAS, Future Infantry Soldier as a system, basically to make human better equipped, better fighting combat with the help of technology. तो इसके अंदर क्या देंगे? AK-203 assault rifles manufactured with the help of Russia along with bulletproof jackets and surveillance system. लिखो. Surveillance system. હાથમાં કશું હશે? મહિના 2 મહિના પહેલા વિડિયો
જોન અબ્રાહમ નું પિક્ચર જોયું તમે લોકોએ લેટેસ્ટ આવ્યું એમાં આવું જ શું હોય એનું નામ અટેક એમાં આવું જ બધું કંઈક બતાવ્યું હોય જો જોયું હોય તો મેં અનફોર્ચ્યુનેટલી જોયું છે પિક્ચર હા ના ના એવું બધું બહુ મહેનત નથી કરતો હું આ તો બેસ્યા હોય એટલે જોઈ લીધું હા હા સરસ મને તો ગમ્યું એટલે એવું કંઈ હતું નહીં હા નોટ ધેટ ગ્રેટ movies are movies and Bollywood is Bollywood. Come what may. Oh yeah, Amir Khan has lost it because I don't understand at the first place why he would make that movies remake. मतलब दिमाग वालों का पिक्चर है पूरा का पूरा है वहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं वहाँ पे फिजिकल चैलेंज की बात कर रहे हैं ऐसे इंडिया कहाँ से चलेगा ये सब या फॉरेस्ट गम देखा है जिसने तो उसको पता है इट्स ऑफिशियल रीमेक Indian events. Today we will also be studying in much detail Indian Aircraft 1 Vikrant, ठीक है? And all of these things, government is only promoting one thing, that is Make in India. All the defense equipments, technology, research and development needs to be Indian made. 70% Indian. 75-76%, yes. Independence Day में guns भी पूरी India. Oh yes, हाँ. Okay. Independence Day में भी speeches ऐसे में आपने करना आप 5 प्राण याद रख ले बस वो बाकी तो सब आवश्यक. बाकी आगे मतलब No, but because देखो, please be thorough with Indian history this year for any examination. ठीक है? Because ये 75 years जो हुए हैं और अमृत खेल रहे हम लोग तो आपको भी थोड़ा बहुत अमृत मिल सकता है. So please stay better prepared. ठीक है? रानी की झांसी लास्ट टाइम आई थी तो इस बार कुछ और आ सकता है. ठीक है? Especially you should cover about the tribal people because of the Alluri Sitaram statue and 2 days ago and 2 years ago government specially declared Janjati Gaurav Divas, that is tribal honors day, that along with Mrs. Murmu. ठीक है? हाँ, आजकल बहुत तकलीफ हो जाता है इसके लिए. ठीक है? हाँ, इसलिए मेरा बोलना कम हो गया है. ओके गाइस, लिख लिया ये. चलो. Landing craft assault. See, these two weapons are specially manufactured, keeping the eastern Ladakh, our border with China, in mind. All of these things are developed by DRDO. Landing craft assault. Basically, it is an amphibious vessel which will help us in Pangong Tso border along with China. ठीक है? To carry out patrolling. Infantry protected mobility vehicle. ठीक है? बस. સર એનસીએ નો ફૂલ લાઇટ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટ નતો એટલે એક વસ્તુના ઘણા બધા ફૂલ ફોર્મ હોઈ શકે ને. સર આ આની અંડરમાં જ છે વેપન સાથે ના ના અલગ છે. લાઇટ કોમ્બેટ લાઇટ લેન્ડિંગ ક્રાफ्ट असॉल्ट तारा कारण है वो भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में घुसी गई. एलसीए का एक दूसरा फुल फॉर्म होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हम तेजस के लिए यूज करते हैं. ठीक है? Don't take this news considering it is boring. Okay? That won't be an unanimous opinion. યુનિવર્સલ ટિકિટ સાત નથી હોવા ये तो है So can I consider that maths ના is પ્લીઝ That's સર his father's is leaps and bounds better. yeah संथल रिवॉल्ट पड़ गए. આમાં તો ટાટા ને મહિન્દ્રા ની એફપીવી ને જે બી યાત્રા કરાય કોણ આવવાનું છે? ટાટા ને મહિન્દ્રા ની એફપીવી બેટરી પ્રોટેક્ટેડ મોબિલિટી राकेश जुर्मादार क्या पूछ लेंगे यार, उनका पोर्टफोलियो क्या है ये थोड़ी पूछेंगे.
वो है, वो चल बस है, बिग बुल जो भी है, बस उतना काफी है, जो भी है। मेरे को तो कुछ नहीं आता शहर वेर का, तो कुछ पता नहीं है। आई डोंट नो एनीथिंग। सी गाइस, कितना पता होना चाहिए उसका डेप्थ में, उनके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछेंगे। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, इवन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको ऐसा पूछ लेंगे दैट वेयर इज द 15th प्रेसिडेंट बॉर्न, समझ रहे हो? राकेश झुनझुनवाला को थोड़ी पूछेंगे। क्वेश्चंस क्या फ्रेम हो सकते हैं वो लॉजिकली सोचो। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट नहीं, सेकंड फीमेल, समझ रहे हो? दैट कैन बी द क्वेश्चन। देन हु इज द फर्स्ट, अगर वो फर्स्ट है तो कौन से नंबर के थे, व्हाट वाज हर टेन्योर, ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, समझ रहे हो? 12th 13 is Pranab Mukherjee. Okay guys, लिख लिया ये? इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी न्यूज़ हो तो सोचो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला के ऊपर क्या पूछेंगे? ओके, द फाउंडर ऑफ विच एयरलाइन, तो अकासा, ओके बस बात खत्म। और क्या हो सकता है? ठीक है, चालू થઈ ગઈ। પહેલો રૂટ વોઝ બેંગ્લોર ટુ અમદાવાદ। हाँ થઈ ગઈ, ચાલू થઈ ગઈ। Rohingya is quite old, but you should just know some basic details, like they are from Myanmar, and from Myanmar they are from a province called Rakhine, Rakhine, okay? Politics, man, I don't like it, man. Okay? No political discussions. ओके, देखो ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इसमें अभी आपको डिक्टेट करूंगा, आपको कुछ लिखना है साथ में, ठीक है? पहले इतना लिख लो। देखो रिसेंटली टोटल कितनी साइट्स ऐड हुई है? क्लोज टू 26। मेरी बात सुनो, पहले 5 हुई थी, बाद में 10 हुई, बाद में 11 हुई, टोटल कितनी हो गई? 26। देखो 28 इंडियन बैटलमेंट्स हैव बीन एडेड इन दिस ईयर ओनली, समझ रहे हो? यहाँ पे लिखा ही है। प्लीज इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना। पिछले साल ऑलरेडी क्रैक में इसके ऊपर आया, पिछले नहीं 2 साल पहले, पेपर देख लेना। रामसर, यूनेस्को में जो कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिटी का टैग मिलता है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? इतना पहले लिख लो, ये सारी की सारी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट कहां पे है? तमिलनाडु 14, सेकंड नंबर पे यूपी, कितने? 10, लिख लो, ये लिख लो। बाद में मैं आपको बताता हूं कौन सी 11 रिसेंटली ऐड हुई है, ठीक है? You have to also keep it intangible cultural heritage पढ़ाया था मैंने, याद है? कौन सा आइडिया हेरिटेज? रिसेंटली कौन सा आइडिया? अगर आपको अगस्त में ये चीज नहीं पता है, अगस्त खत्म होने आया, एग्जाम कब है? दिसंबर में, जो भी देने वाला हो, तो आपका हालत बहुत बुरा है। एक और दुर्गा पूजा, ठीक है? तो ये आपका रियलिटी चेक हो गया कि मैं जब बताता हूँ तब भी आपको इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद नहीं जाता। कंडीशन में આપી ને કે જેને ડિસેમ્બરમાં એક્ઝામ આપવાની હોય એને। This was done to make sure that we have 75 sites, Ramsar sites, internationally recognized site in the 75th year of independence, ठीक है? जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है वो कौन से पिलर से लिया गया है? हाँ, वो पिलर कहाँ पे आया था? सारनाथ दिया।
हाँ सारनाथ बिहार या सारनाथ यूपी? सारनाथ यूपी, वहां से लिया है, ठीक है। सारनाथ नहीं है और नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। हाँ, वो कहाँ से लिया गया है? वेरी गुड Wrong. नहीं, it's a उपनिषद उपनिषद बृहद चंडोक। चंडोक। ठीक है। उपनिषद तो पढ़ी गई। उपनिषद से चंडोक। याद हो गया? अरे पर उपनिषद याद है भाई नेशनल एम्ब्लेम છે नेशनल एम्ब्लेम એ એમનેમ નથી આ પર તો વાત થઈ ગઈ આને એટલે જ ભણાયું। બસ તો બાબા બોલે ये जो मैं साथ में बताता रहता हूँ ये सब भी काफी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आया मेरे को मत पूछना कि सर पीपीटी में से नहीं आया, बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूँ रैंडमली, ठीक है, लिख लेना। आपने तो देखा है एम्बुलेंस, सबने देखा है? और पक्का? हां हाँ, तो कौन से 4 एनिमल है पता है ना? बुल टाइगर एलिफेंट है बॉस बुल लायन लायन तो ऊपर से मुंह खोलिए ना, लायन बॉस में कंट्रोवर्सी। लायन अरे भाई तू અત્યારે મારા कौन सा 4 एनिमल है इन द 4 डायरेक्शन? और बुल एलिफेंट अपनी है हाँ, પછી છેલ્લો એન્ડ થોડું ડાઉટફુલ છે અલા વુલ્ફ નથીલા। टाइगर છે કે નહીં એ ડાઉટફુલ બાકી बुल हॉर्स અને एलिफेंट बुल और टाइगर भी છે बुल આખો રિસર્ચ કરે વેરી ગુડ। કારણ કે એના ઉપર भी થોડું જે કોન્ટ્રોवर्सी થઈ છે तो उसके ऊपर से फैक्ट शायद हमें पूछ सकते हैं, तो इतना पता होना चाहिए, ठीक है। वो भी ब्रिटिशर्स ने ढूंढा था, दे आर एक्सकवेटिंग द साइट नियर सारनाथ, एंड सारनाथ का इंपॉर्टेंस इज दैट गौतम बुद्ध ही गिव हिज फर्स्ट sermon इन सारनाथ डियर पार्क, ठीक है। नियर बनारस वाला यूपी हां यार तो अशोक का मैं ढूंढा होते ये ध्यान नहीं यार एक्सेलेंट हाँ तो कौन है? अशोक का कितना टाइम बचा हाँ तो पहले कौन है? तू तो बुद्ध बुद्ध चार बुद्ध फादर था ना भाई बेटे ये तो राजा मॉडर्न एम्पायर और एम्पायर। ओके गाइस चलो, जनपद सिस्टम હતી ને ત્યારે महाजनपद था, ये तो बच ही आया। महाजनपद पहले थी। પહેલા એટલે during the time of Buddha there were महाजनपद। આ પણ ચૂલા પછી બીજા ઓકે ગાઈસ, આ લખી દીધું બધાએ તો હવે ઓર્ડર। હા, જો સ્પેલિંગ ના પૂછતા તમને જેમ સમજ પડે સ્પેલિંગ લખજો, બરાબર? મહેરબાની કરીને મને બક્ષી દો, બરાબર? टेम्पारा लेक इन ओडिशा। ओडिशा में 3 है, पहले ओडिशा लिखो फिर मैं 3 उसकी साइट्स बताता हूँ। एक है टेम्पारा, ઓરિસ્સા हाँ ओडिशा में 3 साइट्स है। पहली है टेम्पारा, दूसरी है हीराकुंड। हीराकुंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे हां हाँ तो वहां पे एक इज ऑन द रिवर महानदी, लिख लेना हीराकुंड के बाजू में ऑन महानदी रिवर। ડેમ બી એટલે વેટલેન્ડ ની ડેફિનેશન में डिटेल में ભણાઈ હતી, યાદ છે? મેં તમને કીધેલું તમારા ઘરની પાછળ પાણી હશે એને બી વેટલેન્ડ કહેવાય। તો થઈ ગયું ને? जहां पर पानी है કાંકરિયા લેક ને બી વેટલેન્ડ કહી શકે કાલે ઉઠીને। અનુ સ્પા લેક, અનુ અને અનુ ને સ્પા આપો, અનુ સ્પા લેક, બરાબર? અનુ સ્પા લેક ઓડિશામાં 3 થઈ ગયા। મધ્યપ્રદેશ તો 75 ના, જે નવી એડ થઈ ને એ મધ્યપ્રદેશ यशवंत सागर, हाँ यशवंत, यशवंत सागर यशवंत તામિલનાડુ। તામિલનાડુમાં ટોટલ કેટલી છે? 4 છે અત્યારે, પહેલી 10 આવી ગઈ છે, તમને 4 ગઈ છે અત્યારે। લખો ચિત્રા, ચિત્રા અને પછી ગુડી, ચિત્રા ગુડી લખો।
બર્ડ સેન્ચ્યુરી. હા, અરે એક વાત સાથે લખો અને અલગ લખો તો વાંચો તો સરખું જ ને તમે. બરાબર યાર. પ્લીઝ રેઝ રીઝનેબલ ડાઉટ્સ. ચિત્રાગુડી. सूची, सूची तो लखाए ना, SUCHI, सूची. ग्राम, DRAM, सूची ग्राम. थरूर, थरूर तो आवड़તું હશે ને લખતા, લખી નાખો. But this Tharur is in Tamil Nadu, not Kerala. Okay. Drum, DRAM. थर्ड લખો વડુ. વડુ ખાવ તો ને વડુ. VADU, વડુ. વર, VAR. વર તો फोर्थ અને લાસ્ટ કાંજી કુલમ. ગુલામ. महाराष्ट्र MH. कुलम KULM. હે ભગવાન રિષિત, આ તું જે મને નાની એક સ્પેલિંગ ની મિસ્ટેક કહે છે એનાથી શું કરું? પ્રોનાઉન્સ સેમ રહેવાનો છે દોસ્ત. બરાબર. થાને ક્રીક, વેરી ફેમસ. ગ્રીક. महाराष्ट्र में जो है उसे थाने क्रीक कहते हैं. ठीक है, थाने क्रीक. हाँ. लास्ट टू दे आर इन जम्मू एंड कश्मीर. लिख लो. हाईगैम, HYGAM. हाईगैम, हाईगैम, HYGAM. ગમ ઘૂમ તમારે જે કહેવું હોય કહો. હા, લખો હાઈગમ. બરાબર. હા. અને બીજું છે શાલબગ, BUGH. શાલબગ, BUGH. ભાઈ હવે પછી કોઈ એમ કહે છે કે સર BA છે, યુ છે. હવે એક વસ્તુ સમજી લેજો કે તમને જો આ ટોપિક ઉપર ક્વેશ્ચન્સ પૂછવા હશે તો કઈ રીતના પૂછશે. They will write which of the following is located in Jammu Kashmir. ચાર ઓપ્શન આપશે, બે મહારાષ્ટ્રની નાખશે, બે તામિલનાડુની નાખશે અને એક જમ્મુ કાશ્મીરની નાખશે. And then you have to find out. સમજ્યા? રામસર સાઇટ્સ ના રિલેટેડ બીજા જે ફેક્ટ્સ છે, which is the biggest, which is the smallest, that has already been discussed. previous lecture માં જોઈ લેજો. બરાબર છે? આની પહેલા આપણે ઓલરેડી બીજા ભણ્યા છે. આજે મારે તમને બધા 26 સાથે નતા કરાવવા. 5 આપણે ઓલરેડી ભણી ચૂક્યા છે, 11 આપણે ભણ્યા, બીજા 10 રહ્યા એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરાઈશ. બરાબર? આ વીકમાં એટલીસ્ટ એટલું ટ્રાય કરજો કે આ યાદ રહે. બરાબર? બિગેસ્ટ વેટલેન્ડ ક્યાં છે ઇન્ડિયાનું? Hemis. વેરી ગુડ, એક્સીલેન્ટ. રોંગ આન્સર. हाँ, बराबर. हेमिस नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क. बराबर. क्या है? वेरी गुड. सुंदरबन इज द लार्जेस्ट वेटलैंड साइट इन इंडिया. रेणुका इज द स्मॉलेस्ट. खोटू. वेरी गुड. बराबर. હવે તમને મોન્ટુ લખતા આવડશે? મોન્ટુ, MONTRE. બે લખો ને, હું તમને અહીંયા કહું છું પછી. MONTREAUX. સિટી છે. MONTREAUX.
મોન્ટ્રુ રેકોર્ડ કરીને એક લિસ્ટ છે બીજું which is always associated with Ramsar site. Ramsar site જોડે there is another list which is called Montreux list. આ લિસ્ટમાં એવી રામસર સાઇટના નામ આવે છે which are threatened, બરાબર, જેની હાલત બહુ ખરાબ થઈ ગઈ છે because of pollution, because of encroachment, because of overfishing, બરાબર. પહેલે ઇન્ડિયામાં બે એવા લેક હતા જેનું નામ આમાં આવતું, બરાબર. એક છે ચિલ્કા લેક અને બીજું છે લોકતક લેક. ચિલ્કા is in ઓડિશા, લોકતક is in મણિપુર. પછી ચિલ્કાનું નામ આવ્યું તો ગવર્નમેન્ટ थॉट કે कुछ करना पड़ेगा, let's improve the ecosystem of the lake. They improved it, so now it is out. तो दूसरा कौन आया उसकी जगह पे, एक सांभार करके which is located, sorry कौन सांभार, कियोलादो नेशनल पार्क which is located in राजस्थान. ये दो हीरो है अभी which are endangered, बराबर. कियोलादो नेशनल पार्क and लोकतक नेशनल पार्क they are mentioned in Montreux list. ठीक है, पहले चिल्का था लेकिन गवर्नमेंट ने काफी सुधारा तो चिल्का बाहर लाड़ो एलोडियो लाड़ो है आज गाड़ी है लोकतक which is located in Manipur. અને કિયોલાડો. अच्छा लियोनार्डो સ્પેલિંગ हाँ, Golwans. Kiolado National Park that is located in Rajasthan and Loktak it's located in Manipur. મારે બોલવાની રાહ જો. Chilka Lake which is located in Odisha that was mentioned in Montreux list but that was removed after a few years. So right now in Montreux list there are two sites, that is Kiolado and Loktak. सांभर को भूल जाओ, सांभर इज लोकेटेड इन जम्मू एंड सॉरी राजस्थान. ठीक है, तेरा जो चिल्का लेक છે ઓડિશામાં નોર્થ ઈસ્ટ સાઈડ છે ને એકદમ નેક્સ્ટ એનો મને બહુ આઈડિયા ના. નોર્થમાં તો નથી એટલો બધો, નીચે જ થોડો. મહાનદી જે एक्चुअली બનાવે एक्चुअली શું પેલું કોણ બનાવે ડેલ્ટા બનાવે છે ત્યાં છે. આ કયા સમુદ્રમાં પેલું ઉત્તર ભારતમાં છે એ સાથે ભણવાનું છે. बायोगैस में कौन सा गैस होता है? नेचुरल जो गोबर अरे वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. मीथेन होता है भाई, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है. बायोगैस में मीथेन होता है, ठीक है. Why this is important? Today along with this we are going to study about 2G ethanol plant. फोन बंद कर दो, मैंने यहाँ नहीं देखा ही બધા જ ફોન बराबर लखो यार. આંખ ને કાન બંને જોરદાર ચાલે છે મારે, નંબર બી નથી એટલે ક્લિયર કટ દેખાય છે બધું જ. હા, 2G, all of these plants have been started in the region of Punjab and Haryana because we are going to achieve three objectives from it. One is the problem of stubble residue in these areas
is of great issue. So that stubble is utilized as a feed in this biogas plants, ethanol production plants, so that we can tackle the problem of pollution, and apart from it we are getting clean renewable energy that is called methane, that is also known as biogas. ठीक है? Along with it, employment opportunities for number of people, good investment because ये हर एक प्लांट 1000-2000 करोड़ का होता है. ठीक है? So it's good. लिख लो. 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: लेस पॉल्यूशन, क्लीन एनर्जी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. किसने किया है ये? IOCL ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक है? ओ भाई भाई, IOCL तो जी में आएगा इसके लिए, तो मैंने वो पढ़ा था. हाँ, बायोगैस it will be supplied to Indian Oil Corporation Limited. ठीक है? सर ये तो नेट में करो बैटरी पर આને જોયું પેલું એ આપણે અત્યારે જે પેટ્રોલ પુરાઈએ છે એમાં બી આવે છે. આપણે આજે બાયોફ્યુલ પોલિસી ભણવાના છે. બાયોફ્યુલ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક. મને અહીંયા ઘણા બધા લોકો લખતા દેખાય છે અને અવાજ વધે એટલે સ્લાઇડ ચેન્જ કરી દેવાની. સર આ બાસો બધી તમે સ્લેશ નાખ્યું લગન પછી કરો લગા કોણ છે યાર? અહીંયા બહાર નીચે તને એવું લાગે છે કે હું એટલો બધો પેલો હોઈશ કે આ હું ટાઈપ કરતો હોઈશ? ટીચર Copy. इंडियन एक्सप्रेस એ તમે ઈમેલ પર આપ્યો અને મેં અત્યારે જ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવનો ફાયદો ઉઠાવ્યો છે. 15% ડિસ્કાઉન્ટ પર મળે છે અત્યારે ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ સબસ્ક્રિપ્શન. Indian Express કે બધી કંપની બનાવવાની છે. ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ सारे के तो हिंदू भी साथ में वो પહેલા થોડો વધારે હું ફ્રી રહેતો તો તારે બંને ન્યૂઝપેપર આવતો. अरे क्या અત્યારે બી ચાલે છે પેલું ઓફર. अहमदाबाद की लड़ाई ભાઈ બધાનું થઈ ગયું? આ मैं नहीं पढ़ा था, लेकिन क्या है, योर कैंपेन्स के ऊपर आपको पूछ लेते हैं. लास्ट टाइम वो ग्रोन वॉक के ऊपर पूछ लिया था, तब से मुझे लगता है कि इसको भी पढ़ लेना चाहिए. ठीक है? पालन 1000 नेशनल कैंपेन. देखो, I rarely teach this type of thing, but this is a national level campaign. Suppose जो अभी breast feeding बंद गया था, उसके बारे में पढ़ना चाहिए because that was celebrated at national level. ठीक है? So पालन करके 1000 national campaign है. Basically, government wants to focus on child development during their initial 3 years or 2 years. Okay? Because it is said that most of the cognitive development, cognitive में क्या आता है? Mental development. ठीक है? Your calculation, your perception, that happens most during the first 2 to 3 years in a child. So they should provide much more attention. They मतलब parents and guardians and teachers should provide much more attention in developing child's cognitive abilities. कैसे करेंगे? Maximize लो, प्यार ज़्यादा दो, talk and engage, WhatsApp मत किया करो, explore through movement and play, Netflix मत देखा करो, read and discuss stories. अभी वो क्या पढ़ाना है वो आप लोग डिसाइड कर लेना. Mother's engagement with the child by breastfeeding, ये अच्छी बात है, करना चाहिए. Managing stress and staying calm, that is not possible, लेकिन होना चाहिए. ठीक है? लिख लो. मेरे को लगता है ये सब एक दो को हटा के ये सब हमारे लिए जरूरी है.
पहले आके बैठे आप। वीडियो निकाल खाली अच्छी बात। That's good यार। Yes. कोकणात तर इतकं असतो का थोडा वेळा कोकणात मांड बोलतो वो करी लो खबर नहीं यार। आई कॉन्टैक्ट वो एंगेज था कोई दिवस तो मैंने खबर तो करी लो मिरर में दे दे। You understand everything that from the day you are born मैंने बत्ती खबर पड़ी बच्ची की बात वो है कई साल है वो एक एक्सपेरिमेंट पास हुआ तो so in that experiment it was said that when newborn there was a hospital ward in which there were so many newborn babies so जिससे जोर से म्यूजिक बजाया साइंटिस्ट ने तो जो बच्चे उसे ढूंढ रहे they were more into extrovert in their later life और जो लोग ने नाटक शुरू कर दिया रोना रोना ये सब they were turned out to be more introvert तो ऐसा सब कुछ होता है ऐसे ही सब दिमाग आँख सब थोड़ी किया है सब पता चलता है बच्चे को सब पता चलता है Right. नेशनल कैंपेन और पोर्टल्स ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। पोर्टल समझ रहे हो ना, गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च करती है एक से एक बढ़ के, ठीक है। इसके लिए भी एक पोर्टल लॉन्च किया है इन विच देयर आर सम एक्सरसाइजेस फॉर किड्स फॉर पेरेंट्स सो दे कैन टीच देयर चाइल्ड, ठीक है। कौन सा यार जो बढ़ रहा है यार जो बढ़ रहा है कुछ काम का नहीं है। हाँ मेरे को तो बुकिंग एजेंट के पास ही जाना पड़ता है, ठीक है। चलो ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनो। You must have seen that recently government blocked so many websites, some channels of YouTube. Sometimes government is in tussle with Twitter and social media companies. Government tell them to remove some content. ऐसा कहते हैं एंटी नेशनल है, लेकिन बेसिकली वो एंटी गवर्नमेंट्स होते हैं, ठीक है। It is safe to assume that. So which section gives the government this power that they can instruct any intermediary? Intermediary मतलब your social media websites, they are called intermediaries, okay? So that happens under section 69 of IT Act. This act क्या कहती है? It confers power to central and state government to issue directions. किसको directions दे सकती है? Social intermediaries को, ये Facebook, Twitter, Instagram, उनको बोल सकती है कि आप ये सब हटा लो। तो वो लोग पूछेंगे क्यों भाई क्या गलती है इसमें? तो गवर्नमेंट बोलेगी कि ये हमारी सोवरेनिटी को हर्ट करता है, इंटीग्रिटी को हर्ट करता है, डिफेंस को हर्ट करता है, फ्रेंडली रिलेशन को हर्ट करता है, पब्लिक ऑर्डर को हर्ट करता है। बेसिकली दिस आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच एक्सक्यूज रीजन, ठीक है, जो भी है ये सब कुछ है, ठीक है। अभी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? रिसेंटली 7 YouTube channel and 1 more somewhere were banned. Right now Twitter is already in court fighting against the government directions, ठीक है, कि ये लोग जब भी आते हैं मुंह उठा के चले आते हैं कि ये हटा दो वो हटा दो। This is very arbitrary in nature.
दैट इज समथिंग दैट ट्विटर आर्ग्यूज इन द कोर्ट, ठीक है, लिख लो। सर BGMI को भी निकाल दिया प्ले स्टोर से। हाँ किसको? BGMI वो कौन है? PUBG આવું બધું આપણે કરતા જ નથી કામ, ગેમ બેમ શું હતો? તમારી હેબિટ સારી છે કે ખરાબ છે ને? હું અત્યારે થોડા મહિના પહેલા થોડો ઝોમેટો પર વધારે ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયો હતો, મેં ઝોમેટો છોડાવી દીધું। હવે હશે જ નહીં તો મંગાઈ ક્યાંથી? ઘરમાં બેસીને આરામથી કારણ કે શું છે, મંગાઈ લો તમે, તો ઇટ્સ નોટ ગુડ ફોર યોર હેલ્થ। તો થોડું ખબર આપો કે ગેમને હું શું કરવાનું એ ઝોમેટો ડિલીટ કરી દેવા। पर्सनली आने खाई है એવું क्या नाम है આ શું છે ઇન્ફ્લુઅન્સ ફંડિંગ है बिकॉज़ वो रोज मंगाते हैं ये नहीं मार्केटिंग है इसलिए खराब थी। હવે યાર એમાં શું છે કે એ આદત બહુ ખરાબ છે। હું 8 વાગે ખાઉં 12 સારા વોફલનો તો રોજ ઓર્ડર મેં જે વોફલ્સ લાવે રેગ્યુલર કસ્ટમર, એટલે પછી થોડું સમજવું પડ્યું કે ઇટ્સ બેડ। ખર્ચો નહીં, અનનેસેસરી। Alien waffle તો એટલે પેલું આર્મીનાની બાજુમાં અલા આટલા બધા છે છે યાર। બધે છે હા એ ખાલી એક જ જોયું એ જ અહીંયા છે। देखो, this was about the social intermediaries. Government ने 2021 में they came out with rules which are called IT rules. मेरी बात ध्यान से सुनो, एक एक्ट होता है which is a major law जो पार्लियामेंट पास करता है और उसके अंदर आप क्या इंसर्ट कर सकते हो? रूल्स, ठीक है। गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले थे कब? 2021। उसमें उन्होंने क्या कहा that every social intermediary must have a GRM, grievance redressal mechanism। बेसिकली उसका काम क्या है कि गवर्नमेंट ने कोई कंप्लेन भेजी, आपने कंप्लेन भेजी कि ये कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल है, so that has to be entertained by this GRM officer, okay? He has to take action on it within 15 days. Then there were issue related to OTT platform के Netflix वाले सब कुछ दिखा देते हैं तो उसके लिए क्या कहा गवर्नमेंट ने कि भाई एक आप चाइल्ड लॉक लगा दो जो हर एक चाइल्ड को खोलना आ सके, वैसा वाला फिर गवर्नमेंट ने बोला कि आप कंटेंट को क्लासिफाई कर दो कि A16 अबो 18 जो भी अबो वाला है, ठीक है। सो दिस वेर द रूल्स। उसको भी एक बार देख लेते हैं बिकॉज दिस होल थिंग इज इन कंटिन्यूएशन टुगेदर। ये दिख रहा है, देखो सोशल मीडिया के बारे में क्या दिख रहे हैं कि आपको ओरिजिनल कंटेंट को बताना, मतलब सपोज यहाँ पे किसी ने गलत शलत MMS या जो भी कुछ लिखा तो वो जब पहले इंसान ने पास किया, वो किसने पास किया वो हमें बताना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? Like the origin of fake news, the origin of violent content, that has to be said. Consider anti-national grievance officer बना रहा है, वो मैंने बता दिया। 5 monthly compliance report, मतलब आपको 50 कंप्लेन मिली है तो हर एक महीने में आपको एक रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा कि हमें 50 कंप्लेन मिली है and these are the steps that we have taken to address those issues, ठीक है। OTT प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने बोला 5 एज बेस्ड क्राइटेरिया, अंडर 7, 13, 16 और एडल्ट, ठीक है। करना पड़ता है बिकॉज मैं एक और बात पढ़ाऊंगा लेकिन मैं सब कुछ साथ में। गवर्नमेंट गिव्स एवरी सोशल इंटरमीडिएटरी अ प्रोटेक्शन। तो गवर्नमेंट ने इतना ही बोला है कि अगर ये फॉलो नहीं करोगे वो प्रोटेक्शन आपसे हम ले लेंगे। वो नेक्स्ट टाइम क्लॉज पढ़ाऊंगा, अभी आज नहीं पढ़ाऊंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आज 69A को समझ लो। बाद में क्या बोला है? डिजिटल न्यूज के लिए सेल्फ रेगुलेटरी रखो, ठीक है। अर्नब गोस्वामी खुद डिसाइड कर सकता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब खुद को रेगुलेट करना है आपको, ठीक है। पेरेंटल लॉक्स फॉर कंटेंट क्लासिफाइड एज अडल्ट 13+ और अबो, ठीक है।
जो मैंने बताया वही है, एक बार देख लो समझ लो। These rules are important. मैं एक्चुअली आपके पिछले साल में एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके ऊपर क्वेश्चंस तो आने चाहिए, तो इसको लेके भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। The journalists, the activists, government is trying to suppress dissent, ठीक है, इसके लिए। सब लोग ये लोग कंप्लेंट रिपोर्ट फाइल करवानी है, तो कितनी कंप्लेंट गमे देखी कंप्लेन आप गाड़ दी है तो गमे देखी ये लोग कोई If your privacy is violated, आप जा सकते हो इंजीनियर के पास कि भाई ये हटा, it hurts my privacy, ठीक है। पढ़ लो एक बार, समझ लो एक बार। देखो ये है फिर FCRA, मैंने पढ़ाया है, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको नहीं आएगा क्योंकि आपको सुंदरवन याद नहीं रह रहा, इसलिए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो एनजीओ को पैसा दिया जाता है, वो मैंने काफी डिटेल में पढ़ा है, वो भी आप इम्पोर्टेंट लेना। कसोवा બધું ઓનલાઈન અવેલેબલ છે સર અમે 50 મહિના કેવી રીતે થોડી પરસ નહીં જાન્યુઆરીમાં બધું બનાવ્યું, જાન્યુઆરી માર્ચમાં બનાવ્યું, કેટલી વિડિયો રે તો થોડી જ યાદ કરી ये सर એવરી વીકલી जे लोग आर्टिस्ट क्या इतनी बड़ी वीडियो है 6 4 24 24 वीडियो है, डॉट डॉट करना that is how many hours 26 hours that is not even 2 days पूरा नहीं होगा तुम्हारी आखा दिवस वीडियो आखा दिवस बिना वीडियो न चलता ના વીકેન્ડ જો તું નેટફ્લિક્સ બધું કરો તો એ નહીં જોવાનું હોય અત્યારે। હા રિષિત યુ આર રાઈટ, सर વેરી ગુડ। सर એટલે જેને ડિસેમ્બર માં એક્ઝામ આપવાની છે 28 ડિસેમ્બર એમને જાન્યુઆરી થી લઈને એક વર્ષ પહેલાનું પ્રિપેરેશન હોવું જોઈએ। એટલે જાન્યુઆરી થી ડિસેમ્બર જોઈતા વેરી ગુડ, હા રિષિત વેરી ગુડ। ચલો લેટ્સ ગો હેડ। સીધો માર ઓળખે તો હા અમને મળ્યા હતા ને ક્લાસની आज जो बनाते हैं મારા વધારે फैक्चुअल है, लिख लो। केन्या's प्रेसिडेंट विलियम रूटो। इजराइल का प्रेसिडेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर बात है चलो लिख लेना, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इजराइल का। बेंजामिन नफ्ताली है ये है ऑब्जेक्ट है चलो लिखो वेरी गुड। केन्या कैपिटल Nairobi, युगांडा। Damascus, वेरी गुड, एक्सीलेंट। Syria. सीरिया सर सीरिया નું कैपिटल इज Damascus। युगांडा નું कंपाला। ये जो हुआ एक कॉ के टू गॉड मेल तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड પેલા બેન છે ને જે નાચતો અરે કોઈ વાત કોઈ બોલું યંગેસ્ટ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે ના એ છે વો सारे सोशल मीडिया बहुत बोल रहे हैं लाइक इसके लिए तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं कुछ भी बाहर से नहीं ला रहा हूँ, मैं जो पढ़ा है वही पूछ रहा हूँ। तय कीधुं के गूगल ने शाबाशी आपको के धन्यवाद वेरी गुड। साना मरी, ठीक है, साना मरी वेरी गुड। એ નાચતા હતા મેં વિડિયો योगी आदित्यनाथ चलो भाई जाइयो, लेट्स गो। लाग जो लगता है कि लिसोटो કરીને નામ સાંભળ્યું છે? लिसोटो ક્યાં સાંભળ્યું છે? लिसोटो કરીને નામ સાંભળ્યું છે? ક્યાં સાંભળ્યું છે? જગ્યા છે
क्या સાંભળ્યું કોઈ capital વંશ કહે છે ગોલમાલમાં ગોલમાલમાં નહીં, ઓલ ધ બેસ્ટમાં આવે છે, ઓલ ધ બેસ્ટમાં. જગ્યા છે, city છે. આ તો લુસોક જ કહું છું ને. હા એ તું સુરતનો છે? અચ્છા, City છે ને. વેરી ઈશાન, યુ આર રાઈટ, વેરી ગુડ. તો પૂછવાનો મેં મતલબ નથી, તમને નથી ખબર. ના પણ બહુ તો ખરા આવે. ઘરે જઈને એટલે Movie જોઈએ. જોજો, બહુ મજા આવશે. ઓલ ધ બેસ્ટ, બહુ મજા આવશે. હા, બહુ મજા આવશે. તિરંગો ફેરાયા અહીંયા. वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, चलो ये बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है? देखो, चेनाब करके एक रिवर है विच ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है? तो चेनाब करके एक रिवर है, उसके ऊपर सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बनाया गया है. इतना ऊंचा है कि it's close to 359 meters. Once completed, it will be the tallest bridge in the world. ठीक है? And it's an arch bridge. Arch बनाया है उसमें. वो बन गया है और उसके ऊपर जो parallel bridge रखना होता है, वो भी रख दिया है. So basically, that was recently celebrated. जिसको कहते हैं golden joint. Golden joint मतलब once your arch is created, तब आप उसके ऊपर जो parallel plate रखते हो, that is called golden joint. ठीक है? दो एंड को एक करना. It is 359 meters tall, even 35 meters higher than Eiffel Tower. ठीक है? From river bed मतलब रिवर का जो बैंक है उससे 359 मीटर ऊंचा है. ठीक है? लिख लो. અત્યારે સર જે હાઈએસ્ટ છે પ્રેઝન્ટમાં એ ચાઇનામાં છે. नो आइडिया. પેલા જીકે એ તિરંગા ફેરાયા તો. એ બી હતું. क्या? तिरंगा तो बचे 10 करोड़ होता, कितना था हर घर तिरंगा कितना? ના, अच्छा, ઇન્ડિયા ટુડે કેવું? મને તો ખબર જ નથી, આ તો કે જે સાંભળ્યું તું કઈ હશે. ઇન્ડિયા ટુડેમાં. देखो, why this is important? सबसे पहले सब कुछ हमने खुद ने किया है, मेक इन इंडिया. Second is like this is constructed in an area which is very prone to earthquake. It is constructed in the seismic zone 4. मतलब very high intensity of earthquake occurs here, but still we have constructed this. हाँ? अरे बतू आपने गलत बनाया. पूरा सीमेंट लगाया है. बीजी वस्तु ये है कि imagine at the height of 359 meters, the higher you go, wind become very fast. So this bridge is able to withstand close to 266 kilometer per hour की speed. ધીરે હવા જઈ શકે છે, ટ્રેન થોડી જઈ શકે. બધું જઈ શકશે. બધું જઈ શકશે. આ બી લખો, આવડ આવશે આવશે. 359 meters. બરાબર. It is a part of a larger project which we are trying to do, connecting Katra to Banihal. Katra is located in Jammu. Banihal is located in the valley. Valley मतलब कश्मीर. ठीक है? So 24 hours 365 days connectivity provide करने के लिए this bridge is very much important. और ये कश्मीर है, तो हमारे कुछ भाई लोग आगे कुछ कर भी सकते हैं उधर आजू बाजू, तो वो सब विस्टैंड कर सके, वो ध्यान में रख के ये ब्रिज बनाया गया है. આપણે યુએસ પ્રેસિડેન્ટની બીચ છે કે એની પર વિસ્ટેન્ડ અટેક ઓફ આરપી એકદમ 20 છે. આપણા બી બીચ જ છે. આ 56 ના કારણે બધું રોકાઈ જાય ત્યારે. ગાઈસ લખી લો, પછી બીજા ફેક્ટ્સ કહું. 56 ઇંચ. અમિત કાકા 56. Guys, please write down. It can withstand 266 kilometer per hour wind speed. Yes, समझ रहे हो? Again, imagine the conditions in this area. It can withstand extremely cold vehicle also, cold weather also. ठीक है?
कोल्ड वेदर, एक कैन देखो गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था कितने रिक्टर स्केल का था? 7.2 ये 8 तक का झेल सकता है, कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो? एंड इट कैन इवन विथस्टैंड हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट। लिखो लेंथ लिख लो 1315 मीटर, बस 1315 मीटर के 1.3 किलोमीटर। हाँ बराबर, मैंने बोल दिया है अर्थक्वेक जोन 4, ठीक है, साइस्मिक जोन 4 1315 मीटर, એટલે કેટલા કિલોમીટર થયું દોસ્ત? 1.315 વેરી ગુડ, લખો चेनाब बेनाब ये सब बहुत जोरदार रिवर है, इट्स अ वेरी माइटी रिवर, ठीक है, बिकॉज which rivers end in India itself? Jumuna. Excellent, Goda. excellent भाई। ये 5 जो रिवर है, इंडस कहाँ खत्म होती है पता है? कराची। हाँ तो जेल पूरा यूटर्न मार के तो आती है। अरे भाई इंडस तो पहले ग्रेट कच्छ में होती थी, वो अर्थक्वेक आया तो वो जंप मार के उस साइड चली गई। सच कह रहा हूँ 1819 में। मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सी रिवर, ये जो 5 रिवर है 6, उसमें से कौन सी रिवर इंडिया में खत्म हो जाती है, मतलब मर्ज हो जाती है दूसरी के साथ? लिखो बियास मर्जेस विद सतलज, बियास BAS। पंजाब में 5 की 5 मिलेगी हमें, 5 नहीं, अब तो 3 मिलेगी, 2 उधर चली गई। पहले पार्टीशन नहीं हुआ, that is Kosi is called as Sorrow of Bihar, ठीक है, it floods every year, that is Ravi। अच्छा बियास की बात कर रहे हो, हाँ ठीक है, रावी इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। चलो भाई ये सेम चीज है, लिख लो, ये लिख लिया आपने, फिर इतना पार्ट लिख लो। 272 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन फ्रॉम उधमपुर टू बारामूला। उधमपुर इज लोकेटेड कहां पे? जम्मू में, और ये बारामूला कहां पे लोकेटेड है? ऑन इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, LOC के पास, ठीक है। देखो वो भी मस्ती करते हैं, हम सबको कश्मीर भेज देना चाहिए। उनको कंपलसरी ट्रेनिंग से दिखा रहे हैं और उधर भेज देना। कश्मीर का सर G20 वालों के साथ चाइना चला गया। G20 G20 वालों के साथ चाइना चला गया। हाँ यार जरा G20 क्या बता, मेरे को लगता है उसी के आगे वाला क्रिकेट लगे, आगे वाला सारा मार तुम्हारी नहीं आएगा, सिर्फ G20 के लीडर ही जाएंगे उधर, ठीक है। वैसे विंडो में से थोड़ा सा कल ब्लैक पिंक मार, अरे बात है ये लई थी ना, नहीं हम कर्फ्यू अरे बट ये लई थी ना, ऊपर जम्मू उतरेगा, कश्मीर जाए, कश्मीर जाओ, दैट्स द होल पॉइंट। सर बम एक सुतली बम भूखी नजर आ ये यार दीवार के तारा में मैं आप बताइयो ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया? ओके देखो भाई, लिख लो भाई। आप पूछ रहे हो आज तो मेरी बात ध्यान से सुनो, पूछेंगे आपको ये कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे आया?
फ्रांस फ्रांस में बॉम्ब हुआ था। हाँ सब कुछ कैंसल। बीसीसीआई को कुछ नहीं बोलने का है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस फ्रांस में बॉम्ब हुआ था। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड लिख लो। फ्रांस में नहीं है। हाँ। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, प्रफुल्ल पटेल, बट ही इज डिसमिस्ड नाउ। प्रफुल्ल पटेल उनको निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। हेडक्वार्टर होगा ही ना, ढूंढ लो, मुझे नहीं पता। ये बीजा प्रफुल्ल पटेल है, आप प्रफुल्ल पटेल मुंबई में रहे थे। ही इज फ्रॉम एनसीबी। AIFF. FIFA says that you guys are having third party troubles and interference. आपकी जो गवर्निंग बॉडी है, it is not acting in an independent way. It is having third party interference, which is not accepted under FIFA rules. 22nd ના FIFA વર્લ્ડ કપ વુમેન્સમાં આપણે ત્યાં થવાનો હતો ને, ये બધું cancel. हाँ वो देखते हैं, अभी ऑफिशियल स्टेटस यही है, ठीक है। हाँ सर मतलब जो मेन प्लेयर्स है बाकी सब प्लेयर्स को खेलने मिलेगा? किसी को कुछ नहीं मिलेगा। खेलने फिफ्थ एलिफेंट रिजर्व, जस्ट लाइक टाइगर रिजर्व है इंडिया में, इन द सेम वे देयर इज एलिफेंट रिजर्व्स। द मेन ऑब्जेक्टिव हियर इज टू प्रोटेक्ट द होल हैबिटेट। हैबिटेट मतलब पूरा का पूरा जंगल प्रोटेक्ट करना है, सो दैट एलिफेंट्स कैन हैव अ सेफ पॉपुलेशन, ठीक है। कहाँ पे बनाया गया है? इन तमिलनाडु, बिकॉज एज यू नो केरला एंड तमिलनाडु विल बी हैविंग वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटीज ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया, ठीक है। इवन कर्नाटका हैज मोर एंड असम, हाँ असम, ठीक है। टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 31 एलिफेंट रिजर्व्स है, ठीक है। रिसेंटली जो लास्ट में ऐड हुए वो कहाँ पे ऐड हुए हैं? वन इज इन कर्नाटका, सिंगपान इन नागालैंड एंड लेमरू इन छत्तीसगढ़। टाइगर रिजर्व्स इंडिया में टोटल 52 है, बट एलिफेंट रिजर्व्स कितने हैं? 31, लिख लो। तमिलनाडु में 5th है, उसके पहले के 4 कौन से हैं? नीलगिरी, सेलम्बूर, साइलेंट वैली इन कोयम्बतूर, श्रीवल्लीपुतुर एंड अन्नामलाई, ठीक है। हाँ ऋषित, मुझे पता है प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। ये और आमिर खान एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। नो, ये भी पढ़ाना पड़ा, इसके लिए पढ़ा, वरना इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट जस्ट हमें थोड़ा पता होना चाहिए। यस, इसलिए पढ़ा है, वरना कुछ नहीं होता इसमें से। I don't settle mock test paper. હું કરીશ, ચિંતા ના કર, બહાર છું એટલે હું હજુ આપીશ, હું મોક ટેસ્ટ આપીશ, હું હજુ એક્સ્ટ્રા મટીરિયલ બી આપીશ, પણ સમય આવે ત્યારે તમને હજુ આટલું વાંચતા નથી, બીજું શું આપું વાંચવા? याद रखो, भूल ही गयो पोते। आई एम नॉट श्योर, એટલે બોલતા રહે। वर्ल्ड एलिफेंट डे। डेज इज समथिंग दैट आई विल नेवर ट्राई टू रिमेंबर। मतलब 1 मार्क में दे दूंगा किसी को, क्या भाई ले ले, कितने डेज पढ़े हम, हर एक दिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
हाँ ऋषित अर्जुन आवा दो, डोंट वरी, आई विल मेक श्योर दैट आई गिव यू माय बेस्ट, ठीक है? वेल ऑगस्ट हमारा बच्चा फोन नहीं है, मोबाइल तो यही मजा आ गया। એટલે જ હું કહું છું કે હું લઈ લઈશ, તમે જેટલું ભણો છો એટલું નહીં ભણી શકો, કારણ કે ત્યાં પછી તમે તમારા ફોન સાથે તમે તમારું કોન્સન્ટ્રેશન બધું ધ્યાન કરી દેશો એટલે ચલો આગળ જઈએ અને ભાઈ જલ્દી લખો। तो यार मुन्ना भाई जेवू कर दी, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं पूछ सकता, जान सकता, पढ़ने का मतलब तो सिर्फ पैराफ्रेजिंग करिए तो देखो पैराफ्रेजिंग जो है शब्दों बदलवाना भावना से गल्फ ऑफ मन्नार रामसर साइट है या नहीं है? गल्फ ऑफ मन्नार नहीं है। एक्सीलेंट, रॉन्ग आंसर है, बोला है, ठीक है? इट इज द फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है? अपने गुजरात में है मरीन नेशनल पार्क, रामसर साइट एक सौराष्ट्र में। रामसर साइट तो ये वाला है ना, और उधर भी है। रामसर साइट फिर एक बड़वान में है, नाम भूल गया, बड़वान में भी एक है, और एक है। सर कोइंसिडेंस तो है इंडिपेंडेंस डे पर કોઇન્સિડન્સ નથી એના માટે जानी जोड़ी करनी है पहली। हाँ हाँ भरूच सर, હા હા भरूच साहेब It is given across 5 categories. Grand Cross वो बहुत लिमिटेड लोगों को मिलता है, फिर ग्रैंड ऑफिसर थोड़े ज्यादा, कमांडर थोड़े ज्यादा, ऑफिसर थोड़े ज्यादा, अनलिमिटेड किसको दिए जाते हैं? It was started by one of the greatest, Napoleon Bonaparte himself in 1802, ठीक है? लिख लो। A person who said, "I am the emperor of French Republic", ठीक है? रिपब्लिक जो है तो वो बात तो हमारे खाली यार याद से आ रही इस बोले बात कर लो। ये किसको मिलेगा? शशि थरूर को मिलेगा, ठीक है? लिख लो। એમને કયો મળે Is getting this one, Knight और Chevalier, ठीक है? नाइट और शेवेलियर काफी सारे इंडियंस को मिला है, एक्चुअली सारे मिले हैं, बट सबसे पहले किसको मिला है वो मैं आपको होमवर्क देता हूं, रुकिए ला। सबसे पहला इन 5 कैटेगरीज में सबसे पहला कौन से इंडियन को मिला है वो लिख के ला। ના મળે ग्रैंड क्रॉस इंडिया में से 2 लोगों को मिला है, ठीक है? बिकॉज़ देखो इट्स गिवन ओनली 80 लिमिटेड, ठीक है? वैसे आम आदमी को मिलेगा नहीं, वो सिर्फ बड़े-बड़े लोगों को मिलेगा। એટલે ટોટલ એટલે नेपोलियन बोनापार्ट का पूरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन लोगों के ऐसे पढ़ते थे, वाटर रिसोर्स में डिफीट किया था। कब हुआ? 17th सेंचुरी मतलब क्या वर्ष? 18th सेंचुरी 1789। वेरी गुड, Chinese कौन सा? चाइनीज रेड्स में रिवॉल्यूशन, मतलब मैं कंफ्यूज हूं। No, that is from 1927 to 1949. and Ulu 49 Civil War, that was outright civil war, जो आपको शायद इंडिया में भी देखने को मिलता है, 1962 लेकिन war was we tried to avoid it, बच गए। बच गए। 1962 war में माओ ज़ेडोंग, माओ Of course, Mao Zedong। 1962 के लिए
એને પંચશીલ એગ્રીમેન્ટ લીધું ને નહેરુ એનું સર પંચશીલ એગ્રીમેન્ટ સરદાર પટેલે ના પાડી હતી. That is different story. 3rd July 1952 वाला पंचशील एग्रीमेंट 1954. Nineteen 64. 27th May. डिसेंबर में तो वॉर चालू 27th May 1964. चलो हाँ 61. Prime Minister Modi inaugurated what? 2G ethanol plant. ये आपको एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि 1G, 2G, 3G, 4G, 5G मोबाइल में आता है तो इथेनॉल में क्या आ गया 2G सेकंड जनरेशन उसमें क्या आता है हम आगे देखेंगे. कहाँ पे किया? हरियाणा में with the same purpose that we have to reduce the stubble burning in these regions so that we can have less pollution. ठीक है, ये किसने बनाया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक है, ये लोग करेंगे ये काम. बताओ आगे तेरा आउटलुक. ओके गाइस लिखो. सेकंड जनरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन क्या है, फोर्थ जनरेशन क्या है, मैं उससे कहना बता रहा हूं. शुगर केन वापरा नहीं इथेनॉल बना नामों खाई लो थोड़ी. शुगर केन वाला भाई इथेनॉल कहाँ यूज होता है? पेट्रोल पेट्रोल में. एयरप्लेन के फ्यूल में एयरप्लेन फ्यूल लोकल आंसर आपको ना बने. बराबर. Whose tragedy? Whose tragedy? Whose tragedy? इन शॉर्ट તમને મારે એવું કહેવાનું કે લઠ્ઠા કાંડ રૂજ એ થયો એ સાંભળ્યો એને ઇંગ્લિશમાં હોસ્ટ ટ્રેજેડી કહેવાય. હવે તમે લોકો યાર શું કરો? सूट कर કસુરે છોડો that is methanol. इथेनॉल की जगह लोगों ने इथेनॉल की जगह मिथेनॉल કોઈ બી આલ્કોહોલ તમે એઝ અ સેનિટાઇઝર યુઝ કરી શકો. ब्रांडी સર વાગ્યું હોય તો એ ના છોલા હોય ત્યાં નાખીએ તો मैं बड़ी जाए Natural biofuel is 10,000. प्योर एल्कोहल एक्चुअल નેક્સ્ટ ટાઈમ મેં वो कर लूँ. Pure deep palm oil is the one. ओ भाई एक बार लकी दो सर આ તો મોઢાની પેટી બંધ રાખો મહેરબાની કરીને. હા કઈ વાત. चलो सी बायोफ्यूल इज वेरी. ये दिख नहीं रहा है आपको कि दिख रहा है? दिख रहा है. ओके देखो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी. बायोफ्यूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट. Biofuel is a very clean energy, so government has instructed all the oil companies that you have to blend 20% in petrol. ठीक है સર 2030 થી ધારો કે પેટ્રોલ ડીઝલ બેન નતા કરવાના ના આપણે કોઈ દિવસ એવું બોલીએ જ નહીં ને. પ્લીઝ ફોકસ. 20% will be blended in petrol. Why? Because it's very clean. अगर आप 20% इथेनॉल यूज करते हो so we will import less oil from abroad. So that will help us in saving our foreign exchange. समझ रहे हो? What's the larger vision here? That जितना हम blending करेंगे उतना imagine 20% कम हो जाएगा अपने आप
import of oil. So that will help us to save forex. Also apart from it, as I said, it's clean energy. और एक पूरी टेक्नोलॉजी आप अगर लाते हो मिथेनॉल बनाने की, सॉरी इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों, so it will create employment opportunities for everybody. Even farmers जिनका आप रेसिड्यू यूज करके ये बना रहे हो, they will be getting better paid. So to do all those things, government has launched national policy on biofuel. ठीक है, ये जो मैंने बताया 20% blending of ethanol in petrol and 5% blending of biodiesel in diesel, कब तक करना है? 2030 तक करना है. ठीक है, ये यही सब बोल रहा है कि 5 साल में इतना करेंगे इन्वेस्टमेंट, 6 साल में इतना करेंगे इन्वेस्टमेंट. सर पर ये जो मिक्स करेंगे 20% वो सिर्फ IOCL के पेट्रोल हर एक ऑयल, अरे मैं कहा ऑयल में. ठीक है, चलो 1G 2G एंड 3G ऑयल प्रोडक्शन प्रमोट करनी है, उसके बारे में कह रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे लिखा है बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी. हम एक कमिटी बनाएंगे. कमिटी किसके लिए बनाई जाती है? टू प्रमोट ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे वो कह रहे हैं. यहाँ पे कमिटी बनाएंगे. ठीक है, सबसे बेहतरीन तरीका बायोफ्यूल बनाने का होता है हमारे घर पे जो तेल हम एक बार यूज करते हैं और वापस यूज नहीं करते, पता है? एटलीस्ट हमारे घर पे ऐसा होता है. ठीक है, बिकॉज आप बार बार जब तेल को यूज करते हो तो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर योर ओवरऑल हेल्थ. ठीक है, एक वहां ट्रांस फैट बढ़ जाता है उसमें जब आप बार बार एक ही तेल को यूज करते हो. बट दैट डिस्कार्डेड ऑयल कैन बी यूज्ड टू मेक इथेनॉल एंड मिथेनॉल. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन क्या होता है? एडिबल प्लांट से बनाया जाता है. हमें कौन सा बनाना है? 2G से. 2G कहां से बनाया जाता है? प्लांट रेसिड्यू से. दिख रहा है यहाँ पे, प्लांट रेसिड्यू से. 3G कैसे बनाया जा सकता है? आप जब किसी लेक में घूमने जाते हो तो ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ तैरता है, दैट इज ए लीलोतरी नदी. दोस आर कॉल्ड एल्गल ब्लूम्स. उससे भी बनाया जा सकता है थर्ड जनरेशन मिथेनॉल और इथेनॉल. और सबसे एडवांस कि हम खुद ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हमें सबसे ज्यादा बायोफ्यूल देंगे. आप लोग ने बीटी कॉटन का नाम सुना है? बीटी कॉटन वो जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है. यू डोंट हैव टू यूज मैन्योर और इंसेक्टिसाइड्स. अगर कोई भी इंसेक्ट्स उसे बाइट करता है बीटी कॉटन को, वो अपने आप मर जाएगा. विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हम ये सब करते हैं. ठीक है, ये इतना कुछ काम का नहीं है. ये सिर्फ 2G किससे होता है? जो भी वेस्ट होता है, स्टबल होता है प्लांट्स का, वुड का, उससे बनाते हैं 2G का. ठीक है, देखो ये लास्ट है. इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर किसने बनाया है? इंडियन नेवी डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन. सबसे पहले डिजाइन किसने किया है? अलग अलग क्या हमारा बताना है यार. इंडियन नेवी डायरेक्टरेट ऑफ, बराबर. बनेगा कहां पे? कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिंग. बनी और आगे क्या हुआ तुम्हारा? सर बनी नदी का बनी क्यों શું થાકી यार? બે વર્ષથી ભણાવવાનું બધા રાખે છે બીજા છોકરાઓ. कैसे लॉकडाउन? हम लॉकडाउन से सबसे पहले भी इंपोर्टेड विक्रांत. क्या हमने सबसे पहले हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर इंपोर्ट किया था? विक्रांत फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम. रुस्तम पिक्चर देखा है? दैट स्टोरी. वी इंपोर्टेड विक्रांत कहां से? यूनाइटेड किंगडम से. उसका नाम क्या था? HMS हरक्यूलिस, हर मैजेस्टी सर्विस हरक्यूलिस. ठीक है, बराबर. INS विक्रमादित्य. देन वी इंपोर्टेड INS विक्रमादित्य इन 2013 फ्रॉम सोवियत यूनियन. नाम, सॉरी, फ्रॉम रशिया. नाम क्या है? एडमिरल गॉर्कशो. ठीक है, लिख लो. सर इंडिजीनियस फर्स्ट करो इसका. दिस IAC 1 Indian aircraft carrier and we have named this Vikrant because जब हमने सबसे पहला विक्रांत लिया था from United Kingdom, it played a major role in the war of 1971 because पूरा बे ऑफ बंगाल को
INS विक्रांत ने ब्लॉक कर दिया था, so that no supplies can be reached to Pakistan. ठीक है, એના માટે 7 ફ્લીટ મોકલી દીધી US. ठीक है, लिख लो. विराट जो था उसका नाम था HMS हर्मेस. ठीक है, विक्रमादित्य फ्रॉम रशिया जो राइट नाउ हम ही यूज कर रहे हैं. वी आर राइट नाउ ओनली हैविंग वन एयरक्राफ्ट कैरियर, दैट इज विक्रम आदित्य. ठीक है, सर लास्ट में लिखा था एक दूसरा स्पेस कैरियर, वो चाइनीज के बारे में पढ़ाया था, हमारा नहीं. અમારા એક કે दूसरे के बाद ચાલે એ નામ છે ફુજિયા. એવું જ કંઈક છે ને FC 100%. હમણાં એ લોકોનું બિગેસ્ટ ઇઝ ફુજિયા, બિગેસ્ટ એરક્રાફ્ટ કેરિયર. નેક્સ્ટ ટાઈમથી બધાના ફોન ત્યાં મુકાઈશ, વન બાય વન. ત્યાં તમને ખાલી જગ્યા મળશે and I'll make sure કે તમે તમારા ફોન ત્યાં મૂકો. Implementing effectively from next lecture, Sunday. ઇફેક્ટિવ ઇમિડિયેટલી. Yes. લો પાડે થોડા તો Next Sunday. આખો આ પતી ગયું. નથી પાડે. પતી ગયું. ના થાય જોઈએ. For national products, It's a very simple. ત્યાં online. If you are in class, કોણે મૂક્યો કોણે નહીં. મારી સામે અહીંયા હું વન બાય વન મુકાઈશ બધા જોડે. કોઈ બે લઈને આવે. જેનો બહાર નીકળ્યો એને કઈ દઈશ લાય આપી દે. તો શું થઈ યાર. હમ હા આજનું તો અચ્છા હજી હશે આ અંદર પતી ગયું ને? પૂરું થોડી લખવાનું. This aircraft carrier will be having MiG 29 કે Kamau helicopter from Russia, MiG 29 કે MiG-29 from Russia, પણ આપણે MH બંધ જ કરી દીધી. MiG 21 પર MH-60R from USA, Lockheed Martin, जो हम वहां से इंपोर्ट करने वाले हैं. इट इज अ फाइटर हेलीकॉप्टर, मल्टी रोड फाइटर हेलीकॉप्टर. MH-60R from Lockheed Martin, USA. कामो होगा, MiG-29 होगा, एंड यस इंडिजिनियसली डेवलप ALH, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर constructed by HAL, Hindustan Aeronautics Limited. બટ રફેલ નો નેવલ વેરિયન્ટ બી લખવાનું. નેક્સ્ટ ટાઈમ થી જે ફોન વગર ના રહી શકે એ ઓનલાઈન આવે, અને જે ફોન વગર રહી શકે એ ક્લાસમાં આવે. 2 ઓપ્શન્સ. બરાબર, ચલો ભાગો. અટેન્ડન્સ થઈ જાય. બધા પ્રેઝન્ટ જ છે. Yes, bunch. Done for the day. घर के पास मतलब हाँ. 24 आती है, लेकिन मेरे को जाने